کراچی سے خبر، جہاں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ سائٹ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں ہوٹل پر بیٹھے افراد پر مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ ایک شخص سپر ہائی وے ججال گوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہوا۔ مزید جانیں گے نوید کمال سے۔ جی نوید، آگاہ کیجیے۔ جی رپورٹ کر رہے ہیں عباسی شہید اسپتال سے، جہاں 2 واقعات میں 4 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، ان کی لاشیں لائی گئی ہے۔ پہلا واقعہ فقیرہ گوٹ میں پیش آیا۔ بریانی کی شاپ تھی، جہاں پر کچھ افراد کھانا کھا رہے تھے۔ اندھا دھند مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی، جس میں 3 افراد جہاں بحق ہوئے، جس میں عثمان، سجاد اور سلطان شامل ہیں۔ ان کی لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ افراد جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے معلومات جمع کرتے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ پتہ چل سکا ہے۔ دوسرا واقعہ جنجال گوٹ میں پیش آیا، جہاں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص ظاہر شاہ کو قتل کیا گیا۔ تمام واقعات تھانہ سائٹ سپر ہائی وے کی حدود میں پیش آئے ہیں۔ آپ کو افسوسناک خبر دیں بنیر سے، جہاں پر گاڑی 300 فیٹ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 5 افراد جان سے گئے، 4 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور بچہ بھی شامل ہے۔ سما کے نمائندے سلیم خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلیم، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، بنیر کی علاقات تحصیل ڈگر گوکن گاؤں غوردرا، جہاں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ ڈاٹسن گاڑی جو سواڑی سے گوکن جا رہی تھی کہ غوردرا میں اچانک بریک فیل ہونے کے بعد تقریباً 300 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 3 خواتین، ایک بچہ اور ایک شخص موقع پر ہی جان بحق ہو گئے۔ جان بحق ہونے والے خواتین کی عمریں 40 اور 44 سال بتائی جا رہی ہے، جبکہ جان بحق ہونے والا بچہ صرف 9 سال کا تھا۔ ایک 40 سالہ شخص بھی حادثے میں زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ حادثے میں 4 افراد جو تھے وہ زخمی ہوئے، جنہیں ریسکیو 1122 نے پوری کارروائی کرتے ہوئے ابتدائی طبی امداد کے بعد DHQ ہسپتال ڈگر نقصانات کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سلیم۔ کی اوچھی حرکتیں، سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی جاری۔ بھارت نے پاکستان کو انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے سیلابی صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ رابطہ تو کیا مگر سفارتی ذرائع کا استعمال کیا۔ دفتر خارجہ نے انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی ذرائع سے معلومات کی فراہمی کو تشویشناک قرار دے دیا۔ بھارت اپنی مکاری اور عیاری سے باز نہ آیا۔ بین الاقوامی معاہدے انڈس واٹر ٹریٹی کی سنگین خلاف ورزی۔ بھارت نے 24 اگست کو دریاؤں میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے آگاہ تو کیا، مگر انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی ذرائع کا استعمال کیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ بھارتی اقدام پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے سنگین نتائج کی وارننگ دے دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا، بھارت سنتاس معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کرنے کا مکمل پابند ہے۔ معاہدے کو یک طرفہ طور پر التوا میں رکھنے کا اعلان بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے اس اقدام سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے بعد شدید طغیانی کا خطرہ ہے۔ وزارت آبی وسائل نے انتباہی خط جاری کرتے ہوئے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ میرے گھر پر حملے میں PTI کے 500 سے 700 لوگ ملوث تھے، 60-65 کو سزا ہوئی۔ جو لوگ بری ہوئے وہ بھی جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو، کہا PTI سے زیادتی ہو رہی ہے تو آئیں بیٹھیں اور بات کریں۔ کسی بھی سیاسی رہنما یا کارکن کو سزا ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ سزا ہوئے ہیں، تقریباً اس دن میرے گھر پہ حملہ کرنے میں کوئی 500-700 لوگ تھے جو کہ PTI کے تھے۔ اسماعیل سیلا جو وہاں سے MPA کا جس نے الیکشن لڑا، جب سے وہ پیپلز پارٹی سے شفٹ ہو کے PTI میں گئے ہیں تو یہ میرے گھر کے اوپر 34 جو بری ہوئے ہیں وہ بھی تھے اس دن وہاں پہ، جلاؤ گھراؤ میں شامل تھے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے عہدے سے علیحدگی کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سیاسی کمیٹی کا ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ڈٹ جانا ناراضی کی بڑی وجہ بنا۔ چیئرمین PAC جنید اکبر نے سلمان اکرم سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹکا خان ثانی اس پر رپورٹ کریں گے۔
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल का खड़ाक। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ओहदे से मुस्तफी होने के हतमी फैसले का ऐलान कर दिया। कहते हैं आज ऐसा वाकया हुआ जो दो टोक फैसले का तकाजा करता है। पैगाम में लिखा, बानी पीटीआई से मिलकर खुद ओहदे से अलग होने की गुजारिश करूंगा। अलबत्ता पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रहेंगी। जराये के मुताबिक अली बुखारी के जरिए बानी पीटीआई से सलमान अकरम राजा ने गुज़श्ता हफ्ते भी दरख्वास्त की थी जो नामंजूर हो गई। ऐसा क्या वाकया हुआ जो बात इस्तीफे के हतमी फैसले तक पहुंच गई? अंदर की कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर इख्तलाफात वजह बने। सलमान अकरम सियासी कमेटी में ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट पर जोर देते रहे, मामले पर वोटिंग कराने के हक में भी नहीं थे। अलीमा खानम भी इंतखाबात के बाइकाट के बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की हामी थी, लेकिन सियासी कमेटी ने 12-9 की अक्सरियत से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक में फैसला दे दिया। जराये के मुताबिक सियासी कमेटी की अक्सरियत ज़िमनी इंतखाबात में मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहती। पीटीआई रहनुमा और चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर ने सलमान अकरम राजा से इस्तीफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, सलमान अकरम मुश्किल वक्त में बानी के साथ खड़े रहे और बड़ी कुर्बानियां दी। पार्टी को आपकी जरूरत है, उम्मीद है आप इस्तीफा वापस लेंगे। मलिक रियाज और बहरिया टाउन की जानिब से हवाला हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के होशरुबा इंकशाफात। FIA और नैब ने बहरिया टाउन के दफातर पर छापों के दौरान इंतहाई अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार किए गए बहरिया टाउन के अमले से तफ्तीश के दौरान हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकम्मल नेटवर्क बेनकाब हुआ। रिपोर्ट करेंगे कमरुल मुनव्वर। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन की मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दा चाक कर दिया। बहरिया टाउन के दफातर पर छापों के दौरान 13 अफराद गिरफ्तार, हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के 17 मुकदमा दर्ज किए जा चुके। बहरिया टाउन के गिरफ्तार ओहदेदारों से तफ्तीश में रोजाना की बुनियाद पर नए इंकशाफात हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में शामिल अंदरून और बैरून मुल्क लोगों की शनाख्त, मलिक रियाज और अली रियाज के इमा पर की गई मनी लॉन्ड्रिंग के 3 अलग अलग केसेस के ठोस शवाहिद मिल गए। FIA के मुताबिक बहरिया टाउन की मनी लॉन्ड्रिंग में मलिक रियाज और अली रियाज का मरकजी किरदार। शाहिद कुरैशी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान, आमिर रशीद, फजल अब्बास, अताउल हसन, शफकत, मियां खुरम लतीफ, नाजिम खादिम भी नेटवर्क का हिस्सा हैं। 2016 से जनवरी 2025 के दौरान 1 खरब 58 अरब रुपए मालियत की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 2005 से 2015 के दौरान 24 अरब, जबकि 2015 से मार्च 2025 तक 1 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। अमरीकी डॉलर, बरतानवी पाउंड और अमाराती दिरहम UAE, बरतानिया और दीगर ममालिक में मुंतकिल किए गए। बहरिया टाउन हेडक्वार्टर और सफारी अस्पताल में छापों के दौरान 200 से जायद फाइल्स बरामद की गयीं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी दौलत के सबूत मौजूद हैं। कब्जे में लिए गए कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत दीगर डिजिटल आलात का फोरेंसिक तज्जिया करवाया जा रहा है। बहरिया टाउन की सैकड़ों अरब की बेनामी जायदादें जब्त, बैरून मुल्क जायदादों की शनाख्त के लिए इंटरपोल से मदद ली जा रही है। FIA और नैब मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। आपको खबर दें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। ASF अमले ने दुबई जाने वाली खातून मुसाफिर को रोका और सामान की तलाशी के दौरान शहद के जार्स में छुपाई गई 4 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली, जिसकी मालियत 6 करोड़ रुपए से जायद है। मुलजिमा को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-साबी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने UAE सफ़ीर को पाकिस्तान में मुद्दत मुलाज़मत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती के लिए सफ़ीर के किरदार का शुक्रिया भी अदा किया और करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने पर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान की क़यादत को सराहा। हालिया महीनों में दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि मज़ीद 100 बसें 2 रोज़ कबल शंघाई बंदरगाह से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। इंशाअल्लाह पंजाब के हर ज़िले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लिखा, पंजाब के शहरियों के लिए जदीद CCTV की निगरानी वाली, मौसमियाती कंट्रोल वाली और आरामदेह बसों में किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर बसों की वीडियो भी शेयर की।
और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों का काम मुतासिर कुन है। ऐसे इकदाम सूबे के दीगर नुमाइंदों को भी करने चाहिए। नुडेरो के शहीद बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट स्टेडियम में अपना रिक्शा अपना रोजगार स्कीम के तहत रिक्शे तकसीम करने की तकरीब हुई। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा कि 20 लाख सैलाब मुतासरीन को घर दिए जा रहे हैं। ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकम करके उन्हें घरों और ज़मीनों का मालिक बनाया गया है। पीपी चेयरमैन ने मुंतखब नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो अवामी खिदमत को यकीनी बनाएं, तरक्याती मंसूबों की सरपरस्ती करें ताकि अवाम तक बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सके। और लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मॉडल टाउन, गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड पर तेज़ बरसात। कैनाल रोड और गार्डन टाउन के अतराफ हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। मजीद अपडेट्स देते हैं। अनजफर हमारे साथ मौजूद हैं। अंज, आप बताइए किस किस इलाके में बारिश इस वक्त हो रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में एक मरतबा फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर में दिन भर गुज़िश्ता रोज़ बारिश होती रही और शाम 7 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद कुछ देर के लिए बारिश रुकी, अब फिर से दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, कहीं तेज़ और कहीं हल्की। मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर तेज़ बारिश है। गुलबर्ग के आसपास के इतराफ़ हैं, शादमान है, इक्सरा है, यहाँ पर तेज़ बारिश, जबकि कुछ इलाके जिनमें मॉडल टाउन, जौहर टाउन और फैसल टाउन के तरफ में यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है। बारिश के बाद शहर का मौसम तो काफ़ी सुहाना हो चुका था। शहर में इस वक्त गर्मी और हब्स बिल्कुल नहीं है। इस वक्त मौजूदा टेम्परेचर भी शहर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। साथ ही महकमा मौसमियात ने इस बात का भी एक खदशा ज़ाहिर किया कि हालिया बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी के इजाफे का खदशा है। उसके अलावा वासा डाटा के मुताबिक भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब जो रिसेंट बारिश हो रही है इसके मुताबिक 5 मिलीमीटर तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। जी, ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका अनसफर। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद अराइन का कहना है कि केबल काटना दुरुस्त अमल नहीं। सिटी वार्डन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केबल्स काटें। मेयर कराची इनसे मुज़ाकरात करें। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद अराइन का कहना था कि बारिशों में कराची की खबरों पर मुर्तज़ा वहाब नाराज़ हुए। मेयर कराची फादर ऑफ सिटी हैं, वो हम पर शफकत करें। मेयर बनने के बाद मुर्तज़ा वहाब के नज़रियात बदल गए हैं। केबल्स काटने के वाक़यात से मुतालिक सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, PTA और पैमरा को आगाह कर दिया गया है। उनका मज़ीद कहना था कि केबल को ज़ेरे ज़मीन ले जाने के लिए तैयार हैं और हिकमत अमली भी बना ली है। को पहुँचाने का वाहिद ज़रिया ये पोल्स ही हैं, जो कि कहीं के इलेक्ट्रिक के पोल्स होते हैं, कहीं KMC के हैं, कहीं DMC के हैं। इन्हीं पोलों के सहारे जो है ना हम अपने सार्फिन तक ये सर्विस मुहैया करते हैं और इसके अलावा कुछ ज़रिया नहीं है। मेयर कराची भी पाकिस्तान बिल पार्टी का और टाउन चेयरमैन भी इन्हीं के, मगर उन्होंने अहकामात मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते KMC को। KMC कौन होती बोलने वाली, मेयर कराची कौन होता है बोलने वाला, ये मेरा इलाका है, ये मेरा रोड है। तो ये कराची तेरे मेरे में बढ़ गया और कराची वाले जो है ना बड़े बसकून हैं। एक इदारा है पाकिस्तान कराची के अंदर सिटी वार्डन के नाम से, जो कि ये बनाया गया था KMC के अमला की हिफाजत करने के लिए, कि सिटी वार्डन अपना काम नहीं कर रहे हैं और पिछले 6-8-10 माह हो गए हैं उनको इस काम पे लगा दिया है। ठीक है, अहकामात ज़ाहिर है इनके सरबराह मेयर कराची है, उनके अहकामात पर केबल ऑपरेटर की गाड़ियाँ जब्त की जाती हैं। ठीक है,